جی ہمارے ساتھ سیفو صاحب ہے. سیفو صاحب آپ کا استقبال ہے. ہاں شکریہ. جی مومن ہے ہلو آپ؟ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. مومن ہے سر؟ پتا نہیں کیا ہوں میں. مومن گھر میں پیدا ہوا ہوں. اوکے. نماز اور پڑھتے ہیں؟ یہ آج جمعے کے جمعے پر چلا جاتا. ہاں یہ جمعے کے جمعے جاتا ہوں. جاتے ہو؟ سورہ اذا پڑھتے ہو اس میں جمعہ کے دن؟ ہاں بھائی بالکل. پڑھے کوئی سورہ پڑھ کے سنائے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جمعے کی نماز میں جمعے کے بعد کتنے سنتے پڑھتے ہیں آپ؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی جگہ آپ 4 کتنی سنتیں پڑھتے پڑھتا ہوں. ہیں اس کے 4 بعد؟ سنتیں پڑھتا ہوں. اس کے بعد ختم؟ بس 4 سنتیں پڑھ کے چلا جاتا ہوں. اب کیوں، تو اس وہ میں بھی نہیں سنت پڑھتا ہوں. موقع کتنی ہیں؟ ڈیٹیل تو 2 رکعت سنتیں جمعے کے بعد سنتیں موقعہ نہیں ہے. جمعے کے بعد آپ جتنا من کرے اتنا پڑھ سکتے ہیں. آر یو شور؟ نہیں شیور نہیں ہوں. چلو یار، ہاں چلو یار گپ شپ. کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا اسلام چھوڑنا کیا ہے؟ کہنا چاہتے ہو؟ اسلام چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا ہے معلوم نہیں, کہہ نہیں سکتا ہوں, لیکن پھر ٹھیک تو یہاں نہیں کیوں آئے؟ لگتا کیا پڑھ کے. سوال کیا آپ کا؟ میں آپ کو بولتا ہوں پہلے اسلام کے بارے ارے میں آپ تحقیق کریے. ہاں ارے یہ اسلام کو سوچ رہا چھوڑ ہے کے ہاں عبید سوچ رہے سوچ رہا ہے کہ آپ اگر کسی طریقے سے مرتد اس اور کو کافر ہو جائیں بیعت گے. تو کس نے لے لیا یار؟ سمجھے؟ میں ارے لیا کیا نہ کر ساحل. نہیں انہیں بولنے دے, انہیں بولنے دے, میں ان کا جواب دے رہا ہاں ہوں. میں لیتا ہوں میں سیفو بھائی میں لیتا ہوں, ٹینشن نہیں. لیکن دیکھو نا یہ ایمان کا جذبہ دیکھو ایڈم صاحب, کہ ایک بندہ آئی سی یو میں ایک دم اسلام کے, یہ پھر بھی اتنا زبردست ڈاکٹر ہے یہ کہ یہ ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو اسلام کے آئی سی یو سے میں باہر نکال دوں. یہ ہدایت دے رہا, تحقیق ارے کرو. بھائی میرے پہلے تحقیق ہاں کر ہاں لو, نہیں تو تم سیدھا آگ میں جاؤ گے. اپنے آپ کو بچا لو اس کفر سے, نفرت سے, کیونکہ کفر جو ہے تمہیں دنیا میں بھی رسوائی اور عذاب اور نجاست کے سوا کہیں نہیں لے کے جائے گا. اچھا لے ایک کے بات میں جائے گا, بولوں گا. سمجھے؟ میں نے ایک حدیث تم سنی اپنے ہے, نفس کو کبھی ذکی نہیں کر ہاں پاؤ ہاں گے. ہاں عبید بھائی, میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ آپ اللہ کی طرف 1 قدم بڑھاتے ہو تو اللہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہاں ہے, 70 قدم بڑھاتا ہے. نہیں, تو میں اس اللہ کے طرف پہ تم ہوں. 1 قدم بڑھاؤ گے, اللہ تعالیٰ تمہاری طرف 1 ہاتھ بڑھاؤ گے, اللہ 2 ہاتھ بڑھائے گا. ہاں تو وہ بات سن لیجیے, اس میری بات سن لیجیے. تو میں روز اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ہدایت دے, پر جتنا دن بڑھتے جا رہا ہے اتنا دن مجھے اسلام کی برائیاں دکھتی جا رہی ہیں. اسلام کی برائیاں نہیں ہے, اسلام میں کوئی برائی نہیں ہے. اسلام فطرت ہے. جس طرح سے ایک بچہ ایک دم اب گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے اسلام کے اندر, اس طرح سے پورا اسلام پورا گناہوں سے پاک صاف ہے. کس طرح سے بچہ ایک دم فطرت پہ ہوتا ہے, اس اور طرح لونڈی سے لونڈی فطرت بنانا گناہوں سے پاک صاف ہے. وہ لونڈی بنانا کیا گناہ لون ہے؟ سنو, لونڈی بنانا جس کے اندر لونڈی کو, اپنے بیٹے کو بھی تو غلام کہا گیا ہے, یا غلام یا بنیا. اپنے بیٹے کے ساتھ سیکس کرتے ہو؟ اپنے بیٹے کے ساتھ سیکس سن کرتے ہو؟ سن پورا جواب اپنے بیٹے سننے کے کی ساتھ سیکس طاقت کرتے ہو؟ لونڈی کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ لونڈی کے ساتھ کر سکتے ہیں, عبید مگر بھائی اوقات وہی دیا جاتا ہے جو اپنے بیٹے کو دیا جاتا ہے. اچھا اتنا عبید پھٹ بھائی کیوں رہا ہے؟ عبید بھائی سن ایک بات, ارے بھائی عبید بھائی بات ایک بات سننے سنیے, کی عبید طاقت بھائی ایک نہیں بات رکھتے سنیے. تم نے. ہیلو, اللہ نے بھلے ان کو عبید بھائی ایک آزاد بات کرنے سنیے, کو بھی بھلے اگر کہا ہے, ان کے اندر خیر آ جائے تو ان کو آزاد کر دو. قرآن کے اندر لکھا ہوا, ان کو کتب کر دو. اگر وہ تم کو کچھ دینا چاہے تم دے کر ان کو کتب کر دو. اور تمہاری یہ حالت ہو چکی ہے کہ تم بھیک مانگنے اپنے ان کے اندر اتنا بیکاری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کپڑا پہننے کھانا کھانے کے لائق بھی نہیں رکھتے ہیں. ان کی حالت ہو چکی ہے اچھا جگہ ایک جگہ کیا بھیک بول کام رہے ہیں آپ کو مانگتے کرتے ہیں, ہیں, معلوم ہے, کوئی خیر نہیں ہوتا ہے. آپ ہی سمجھو. ایک منٹ سب شانت ہو جاؤ. وہ ایڈم تو صاحب, غلام بنتے تھے, ان کو تو ارے اور ارے یہ حیثیت جو حاصل ارے بول رہے ہیں کیوں یہی سمجھیں گے بھائی. ارے کیوں پھٹ رہا ہے, تھوڑا ہاں رکنا بھائی, موقع دے رہا ہوں. عبید صاحب, موقع سیفو موقع چھین سن رہے تو تو لینا یار, تھوڑا رک, تیرے اچھائی کے لیے بول رہا ہوں, رک جا. بول. سیفو اسلام سے باہر نکلنے والا ہے, آئی سی یو میں ہے. اس کو کس طریقے سے بچا سکتے ہو, بچا لو. سیفو میں میں کو جو چاہتا ہوں سوال بچنا. ہے وہ تم سے کریں گے. جی سیفو ہاں صاحب. سنو, میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی, اسلام سلامتی ہے, اسلام کا نام ہی سلامتی ہے. اور تم کفر کی طرف جاؤ گے, شرک کی طرف جاؤ گے, تو تمہیں صرف نفرت, ظلم, زیادتی,
اس کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. فطرت کے باہر جاؤ گے, فطرت کے باہر جاؤ گے تمہیں کچھ تو آرام ہوگا. جس طرح سے شراب ہوتا ہے, پینے میں تو شروع میں آرام رہتا ہے مگر بعد میں دماغ زائل کر دیتا ہے, سمجھے. اس کے اندر یہ ایسا ہے کہ جمعہ تم کا دین سے جب جمعہ میں نکل جاؤ اس گے لیے لیٹ سے تمہیں جاتا یہ بھی ہوں کہ نہیں پتا رہے مولانا گا, کا تمہیں تقریر حرام حلال سنانا کا بھی پڑا فرق مجھے. نہیں رہے گا. سنو میری بات, تمہیں حرام حلال کا فرق نہیں رہے گا. تم یہ نہیں سوچو کہ میری بیوی کے ساتھ ایک رشتہ رکھنا جائز ہے کہ 2 رشتہ رکھنا جائز ہے, تمہیں اس کا بھی علم نہیں ہوگا. تم اپنے تمہارے بیوی پہ اگر 2 ہے 4 جنا اور تو بھی تم کو فرق پڑے گا. تمہارے بچے بھی حرام ہوں گے. بیوی کے ہوتے ہوئے لونڈیوں کے ساتھ رشتہ رکھنا, لونڈی کے ساتھ رشتہ کریں گے تو لونڈی وہ بچہ جائز مانا جاتا ہے اور لونڈی حلال رہتی ہے, اور لونڈی کسی اور کے پاس جا بھی نہیں سکتی ہے, کیوں وہ حلال حلال ہوتی ہے؟ رشتہ مانا جاتا ہے. کیوں حلال ہوتی ہے, وہی تو سوال ہے میرا. ہاں, لونڈی آزاد ہو جاتی ہے, وہ جو بیوی بن جاتی ہے. جب وہ بچہ جنے گی تو وہ بچہ اسی باپ کا ہوتا ہے, اسی مالک کا ہوتا ہے. اور اسلام نے ان کو خیر حاصل کرنے کے لیے کہا ہے غلام کی طرح, کہ تم غلام کہو بچے کی طرح. ایک عبید بھائی آپ جلدی میں کیا بول رہے ہیں, اگر آپ سنیں تو آپ ہی کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں, ان اگر کو آپ دیکھو غلام سنو. تمہیں میوٹ کیا ہے, سوال کرنے لگا ہوں. آپ نے ایک لونڈی کے ساتھ ڈنگی فرمایا, اس سے آپ کا بچہ ہو گیا. اب آپ اس لونڈی کو آگے بیچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں, نہیں وہ جائز ہو جاتی ہے. وہ بچہ ہو گیا تو وہ لونڈی بیوی بن جاتی ہے. میں نے پوچھا ہے کیا آپ اس کے بعد اس لونڈی کو آگے کسی اور مسلمان کو بیچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو چھوڑنا پڑے گا, وہ عدت گزار کی جائے گی. کسی اور کو بیچ سکتے ہیں نا؟ ہاں, عدت گزار کی جائے گی. اگر آپ تمہارے مجھے اندر بتائیں کوئی خیر اپنی نہیں ہے بیوی تو کو بیچ سکتے ہیں؟ سنو, لونڈی اپنی کے بارے بیوی میں کو بھی بیچ کہا سکتے ہے. ہیں؟ ارے بیوی سن لو پہلے میری بات سنو, وہ بیوی رہے گی نہیں اس لونڈی وقت, کو بیچ سکتے ہیں, بیوی بیوی رہے کو گی نہیں. بیچ سکتے ہیں. ارے اس کے اندر جب کوئی خیر رہے گا ہی نہیں تو اس کے ایک رسی کی بھی اوقات نہیں ہے. اس کو کہا ہے ایک رسی کی قیمت پہ بھی اس کو بیچ دو. یعنی کہ آپ نے پہلے اس سے بچہ لیا, اس کے بعد ہاں اس کی ایک رسی کی بھی اوقات نہیں رہی, اس کو رسی کے ہاں عوض بیچ دیا. ہاں, اگر بیچنا ہے تو الحمدللہ, جس کی اوقات میں ہو تو وہ کھانے کی بھی ضرورت نہیں الحمدللہ. رکھتا, بھیک مانگنے اس کو پیسہ نہیں ملتا ہے. بھیک تو مانگا بیوی کو بھی اتنی بیچنا ہے اوقات نہیں کیسا؟ ہوتی کہ بھیک مانگ کے بھی وہ اپنا پیٹ بھر عبید سکے. ہیومن ٹریڈنگ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے؟ تو ان کو عزت مل رہا ہے, کھانا مل رہا ہے, سب کچھ مل رہا ہے. ہاں, وہ علم و خیر حاصل کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں معمولات کا علم ہو رہا ہے نا ان کو, معمولات کا علم ہو رہا ہے, معاملے کا علم ہو رہا ہے نا کہ کس طرح سے رہا جائے گا, کس طرح سے خیر حاصل کیا جائے گا. اچھا عبید, سامنے والے کو بھی عبید عبید تم تبلیغ کر رہے ہو, سامنے والے کو اس پہ کیا اعتراض ہے وہ بھی سنو گے یا صرف بولتے جاؤ گے؟ سیفو کو سنا کچھ نا, پوچھنا ہے. لونڈی کیوں رکھ رہے ہیں میں بول رہا ہوں. لونڈی اگر اپنے آپ کو اتنا علم و خیر والا رکھے نا تو وہ آزاد ہو جائے, بلکہ وہ مالک بن جائے. کون سی آیت ہے؟ مالک بن جائے. کون سی آیت ہے جس میں وہ مالک قرآن بن کیا جائے؟ آیت ہے یہ دیکھو, کون یہ سی؟ سامنے لا کے دے رہا ہوں, میری کون بات سنو. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, میں اس کا ذمہ کون سی لیتا آیت؟ ہوں اس کو آزاد کون سی کرنے آیت؟ کا. کون میں سی آیت؟ 3 لوگوں کا ذمہ لیتا ہوں. دیکھو یہ آیت میں ابھی کون لا رہا سی ہوں, آیت؟ سامنے دیکھو, جی لاؤ سنو, جسٹ لا رہا ہوں, لاؤ جسٹ زیادہ لاؤ. 10 سیکنڈ لگے گا. نہیں مجھے دیکھو, نمبر بتا دو, میں کھول دیتا ہوں آپ کے لیے. نہیں میں دکھا رہا ہوں, نمبر بھی دکھا رہا ہوں تم کو. میرا بچہ دکھا دے, جسٹ بتا Meanwhile, دے. رک جا میرا بچہ, ہاں بتا رہا ہوں میرا بچہ, رک جا. ہاں عبید تم لے کے آؤ یار, تھوڑا چپ تو رہو. سیفو صاحب میں آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا ذہن لگایا اور سوچا اس بارے میں. اور کیا وجہ رہی؟ ہمارے چینلز دیکھ رہے تھے آپ یا پہلے سے ڈاؤٹس آ رہے تھے؟ کچھ تھوڑا بہت بتائیے جب تک عبید صاحب آیت ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں. میں آپ کا چینل تو نہیں دیکھتا اتنا, جی لیکن غالب بھائی کا اور کیا نام ہے ان کا, حارث بھائی کو دیکھتا ہوں زیادہ تر. ٹھیک ہے. اور بہت دنوں سے بہت سارے سوالات تھے. بچپن میں تو میں ایتھیسٹ ہی تھا, لیکن پھر دھیرے دھیرے مومن ہو گیا. بہت گھنا مومن تھا, مطلب 5 وقت نماز پڑھنا. ڈاکٹر اسرار صاحب کو ہمیشہ سنتے رہتا تھا. آپ جو ٹاپک ابھی پہ بات کر رہے تھے, وہ جی جنگ بدر سے پہلے والے چھوٹی چھوٹی جو جنگیں ہوتی تھی وہ محمد صاحب نے ہی شروع کیا تھا. صحیح. اور بنا کسی ریجن کے شروع کیا تھا. تو یاد تو ٹھیک سے نہیں ہے, وہ ان لوگوں کو سن کے دماغ ہی میرا آف ہو گیا. پتہ نہیں کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں اسلام کو. میں جب آج سے 4 سال پہلے اگر آتا آپ کے چینل پہ, 3 لوگوں سے بہت بہتر ڈیفینڈ کر پاتا. اچھا ادھر
तो डॉक्टर इसरार साहब को सुना था कि इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए वेल्थ की जरूरत थी और उसके लिए लूटना था, तो वो सही था। अच्छा, ये जस्टिफिकेशन था ये डॉक्टर इसरार जस्टिफिकेशन साहब का। ओए होए होए डॉक्टर होए इसरार साहब एडम का। जस्टिफिकेशन। एडम साहब, आपने जस्टिफिकेशन सुना डॉक्टर इसरार साहब का? जी सर, बहुत सारे क्या लोग भारी पाकिस्तान में ये बात जस्टिफिकेशन था। बोलते हैं। जी, ये बिल्कुल सही है यार। इंडियन मुसलमान पता नहीं क्या है यार, साला इनको मुझे समझ नहीं आती कि इनको क्या है, ये क्या बीमारी क्या है इन्हें। ये असल में आधे आधे हिंदू हो चुके हैं, क्वाइट फ्रैंकली दे डोंट इवन नो देयर ओन स्क्रिप्चर्स। बीच के हैं। उसीलिए तुम देखिए, कोई भी रिलीजन पे इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी स्क्रिप्चर्स को ही नहीं जानता। अच्छा, इसका ये 10 सेकंड हुआ नहीं ओबेद का? नहीं होगा इतनी जल्दी। जैसे मुझे ही जैसे ही देना पड़ेगा, स्क्रिप्चर्स पढ़ना शुरू करते हैं, सब चीज खुलना शुरू हो जाता है। मुझे ही देना पड़ेगा सर इनको। जी उबैद साहब, मैं साजिद ही दे दूं? सिद्दीकी साहब बैक स्टेज में है, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। अच्छा, चले गए डिवाइस कनेक्टेड करके। और जो सूजा अंसारी थी, वो असल में एक मोमिना थी। सूजा अंसारी जो आई थी, सूजा अंसारी बेगम जी, बेगम नहीं बोलेंगे, सॉरी, मोहतरमा जी, आप फिर से जुड़ जाइए। तो आप गाली गलौज कर रही थी, तो लानतें विनतें भेज रही थी मेरे ऊपर। तो आप लाइव में आके लानतें भेजे, कोई मुश्किल नहीं, हम आपकी लानतें सुन भी लेंगे और सह भी लेंगे। अच्छा, जब तक ये उबैद भाई को रेफरेंस नहीं मिल जाता, तो हमारे साथ यासिर साहब जुड़े हैं। यासिर साहब, आपका इस्तकबाल है। गाइस, 5000 लाइव व्यूअर्स के लिए सिर्फ 25 लोग बचे हैं। 4980, ओनली 20। थोड़ा सा धक्का लगाओ दोस्तों। 4980, लेट्स क्रॉस 5000 टुडे। जुमा की रात है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह भी पहले आसमान में नहीं, अभी टाइम हुआ नहीं अल्लाह का आने का, अभी और थोड़ा टाइम बाकी है। ओह, 5003 बोलते साथ, वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़िया इनको। थैंक यू सो मच गाइस। 5000 जितने नए लोग देख रहे हैं। हुआ नहीं ओबेद का? नहीं होगा इतनी जल्दी। जैसे मुझे ही जैसे ही देना पड़ेगा, स्क्रिप्चर्स पढ़ना शुरू करते हैं, सब चीज खुलना शुरू हो जाता है। मुझे ही देना पड़ेगा सर इनको। हाँ हेलो जी, साहिल हाँ, ओबेद साहिल, साहब आ गए। हाँ, मैं बताओ। आपको सूर्य नूर की 33 नंबर आयत बता रहा हूँ। आए 24 की आयत नंबर 33। मैंने मुझे कहा था ना इतनी जल्दी, मुझे पहले ही बोल देता ना कि एडम भाई आप दिखा दो। ये ले बकर मेरी जान के हाँ, टोटे, मैं तो स्क्रीन पे लाके बैठा ठीक हुआ है, हूँ। जस्ट ये क्या मैं लिखा? जरा मैं भी जरा सामने लाता हूँ जरा। हाँ कहाँ बता है ना वो? क्या लिखा हुआ है। बस आ रहा हूँ। यार पहले ही मुझे बोल दिया करे ना यार, आयतें तो हमारे पास होती हैं। तूने इतनी देर लगाई है। अरे चलो देर कुछ नहीं लिखने वाला लगाया, की वो बताऊं। जरा जलेबी हो गया था दिमाग में, ओए होए होए घूम होए। गया था दिमाग, चल बता ना क्या है जल गया इसमें, था तुम्हारे क्या है? चक्कर से। बोल। चल हाँ पढ़ ले हेलो, आज के दिन में। हाँ ना। अरे बाबा, जलेबी जलेबी क्या हो गया? अरे कितना टाइम लेता है यार ये। यार आयत मैंने मिनट में सामने ला दी, अभी भी इसने आयत देखनी है कहीं और से, जब सामने ला के रख दी है। आर्टिकल्स ना पढ़ा करो यार, याद कर लिया करो इन चीजों को। पूरे कुरान में एक ही आयत है, ये वाली 6400 में एक ही हिस्से की आयत है। सूर्य नूर है दो ना? नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आयत नंबर 33 है ना। हाँ हाँ, आगे ये चल आयत पढ़। है। और बचे रहे जो लोग, मैं पढ़ के बताता हूँ भाई, सुन ले, मैं पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। और बचे रहे जो लोग निकाह नहीं कर पाते हैं, हाँ, अच्छा हत्ता कि अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर दे। अच्छा और जो लोग मकातिब से चाहें, ओके, जो तुम्हारे दाएं मालिक हैं, मलिकुल यमीन, तो उन्हें जो तुम्हारे दाएं मालिक हैं, तो उन्हें कुतब कर दो अगर अच्छा उनमें इल्म और खैर हो, और उन्हें अच्छा अपने अमवाल से दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, और अपने अच्छा लौंडियों को बदकारी पर ना करह करो अगर वो मोहसिन होने का इरादा करें कि तुम ओके हयात दुनिया का माल चाहो, और जो उन्हें करह करा दिया है तो बेशक अल्लाह उनका करह करने के बाद से मगफिरत करने वाला रहम वाला ओके। है। और अच्छा इसके चल बारे में हदीस है,
अभी पहले ये पढ़ ले, 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 ये मैं ये हदीस बता दे रहा हूँ, उसके पहले बाद आयत तुमको पढ़ ले, बता। हाँ पहले आयत पढ़ ले। चल ठीक है बता। चल, पढ़। रिवर्स में चलना है या ऊपर से नीचे चलूं या नीचे से ऊपर चलूं? आयत में पढ़ना भाई, नीचे मैं से तो ऊपर पढ़ के चलूं बता या दिया ऊपर से ना। नीचे चलूं? ऊपर से नीचे क्या और नीचे से क्या ऊपर? ओके। मैं बोल रहा मैं पढ़ के बता दिया, तू अभी पढ़ के हाँ, बता ओके, दे। चले हाँ अब पढ़ लें। ओके, हम्म, अल्लाह कहता है कि अगर तुम में निकाह करने की ताकत ना हो तो क्या करो? हम्म, तो क्या करो? बचे रहो। अगर तुम में निकाह करने की ताकत ना हो तो क्या करो? बचे रहो, बचे रहो यानी अपने आप को जिना में हरामकारी में ना लाओ। हाँ हाँ, तो उसके बाद क्या करो? क्या करो? कब तक बचे हद रहो? तक कि अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर दे। बेहतरीन। अच्छा, यानी कि अगर आपके पास ताकत नहीं है निकाह करने की, यानी कि हाँ आपका पैसे पूसे नहीं है, तो आप वेट करें। कब तक का वेट करना है? जब तक अल्लाह आपको गनी ना कर दे और आपको मलकल यमीन ना दे दे, ताकि आप उससे डिंगी डिंगी ये फरमाएं ये कहा लगा हुआ है। आगे। और जो मकातब करना चाहें यानी कि सेक्स करना चाहें तुम्हारे ममलूकों में से, मकातब जिनसे क्या होता मकातब है? कर लिया करो। मकातब क्या होता है? मकातब क्या है? नाउ अब वो वाली मकातब की बात मकातब करते हैं, यानी यानी मैं उनके लिख साथ के दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट मैं कॉन्ट्रैक्ट कुतुब टू करके फ्रीडम। लिख के दूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा वो। ओके, हाँ ठीक है। अब क्या करना है? अगर तुम उनमें चाहो, देखो कि वो अच्छे हैं, तो उनको उसकी इस मकातब के अलावा तुम उसको इल्म खैर हो, इल्म खैर, अगर 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 देखो अगर उनके उनमें इल्म खैर हो, तो उनको आजाद भी कर जो सकते हो। तुम्हारे दाएं मालिक हैं तो उन्हें हाँ, कुतुब कर दो, कुतुब कर दो। उनको आजाद मकातिब कर, ठीक है, चाहे ओके, जो चलो। तुम्हारे दाएं मालिक हैं। अब हाँ अगर मैं मालिक हूं उसका, सीधे हाथ का, हम्म, ठीक है, अगर हाँ मैं उसमें खैर नहीं हम्म, देखता अपने तरीके से, हाँ तो क्या मैं उसे आजाद हम्म। कर सकता हूँ? तुम उसे आजाद करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा कि वो अपने आप को बिगाड़ लेगा, वो अपने अंदर इल्म खैर नहीं हासिल कर पाएगा। इल्म हासिल खैर करने के लिए अगर उसे इस्लामी तौर से अपने मैंने पास ये नहीं पूछा। रखे कोई, तो वो उसके लिए हाँ ना उससे बेहतर है भाई, कि 100 जगह जा जाके हेलो लोगों का हेलो लड़ाई करे। हेलो, रिलैक्स, टेक अ हाँ चिल। अब अगर हम्म, मैं उसमें खैर नहीं देखता तो मैं उसको अपने पास रखूंगा और उससे डिंगी डिंगी करता रहूंगा, राइट? हाँ जब उनका अमाली वैसे तो क्या बेहतरीन, होगा? बेहतरीन। हाँ तो बात तो फिर मेरे ऊपर आ गई ना, जो ह्यूमन है हाँ उसके ऊपर आ गई कि हाँ अगर वो उसके अंदर देखे कि इसके अंदर कोई भलाई है तो मैंने आजाद करना है, वरना मेरे ऊपर डिपेंड हाँ। करता है, मैं उसे आजाद नहीं करूंगा, मैं खुद ही उसके साथ डिंगी डिंगी करता रहूंगा, उसको सुबह दोपहर शाम चोदता रहूंगा, तो राइट? काहे को टिकट मुस्लिम को, जब उसका अमाली वैसा है, अमाली वैसा उसके अंदर खैर नहीं है, वो इतना भी नहीं कर पाए कि वो भीख मांग रहा है दर दर भीख पे, नहीं मांग रहा उसका ना, ये हालत है, देखो, तभी तो हेलो मलिकुल यमीन बन गया है। बच्चे, हेलो, यहाँ पे वो हाँ सिर्फ और सिर्फ मुशरिक है, मुशरिक लड़की है, और कुछ नहीं। मुशरिक तो बोल रहा हूँ ना, वो उनके गुनाह हम्म, वैसे, उनके अमाल वैसे हैं, उनके गुनाह की वजह हाँ, से, उनके अमाल की वजह से उनका हालत ये होता है ना। एग्जैक्टली, हेलो हेलो, मेरा एक हाँ सवाल है। हेलो हेलो हेलो। एग्जैक्टली। तो जी सैफू भाई, आप आप सवाल कर लो, क्या सवाल है आपका? सैफू भाई का सवाल है। ये वो अल्लाह के रसूल का एक बेटा थे, उनका नाम जानते हैं आप उबैद भाई? जाइद, नहीं, नहीं, इब्राहिम। जाइद इब्राहिम इब्ने की बात मोहम्मद। कर रहे। अरे वही सवाल इब्राहिम। कर रहा है नहीं, वो जो अल्लाह उनके भी जैद जो थे, जैद के जैद नहीं, ठीक है जैद यार, का जो मैं सवाल नहीं अब्दुल्ला, कर रहा, ओए जैद का उबैद, सवाल नहीं मैं कर। उबैद शट अप, मारिया चुप। किप्तिया, हाँ, अबे उसका मैं नाम शराब मारिया वही किप्तिया, मैं इब्राहिम, मारिया बता रहा किप्तिया का बात इब्राहिम, कर रहा हूँ। इब्राहिम, इब्राहिम। हाँ, मैं मारिया किप्तिया का बात कर रहा हूँ। हम्म, उस मारिया किप्तिया को शायद रोम के किसी बादशाह ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया था। तो मोहम्मद ने कभी उसमें खैर नहीं ना देखा, इसका मतलब है, लिहाजा मोहम्मद ने कभी उसे तो आजाद भी नहीं किया। गिफ्ट के तौर पर दिया था। वो कौन सी भीख मांग रही थी? और कोई ओ, आज के जमाने में अगर है। कोई आदमी किसी अच्छे आदमी को लड़की गिफ्ट करे, मुझे नहीं लगता बोलेगा, नहीं लेगा, उसे लेगा, लेगा, बुराई लेगा, समझेगा, मुसलमान लेगा ना, उसे मुसलमान बुराई लेगा। समझेगा। सुनना, ए, हाँ, उबैद ले लेगा, सुन उबैद सुन लेगा। सुन नहीं, सुन उबैद ले लेगा। सुन
नहीं उबैद मारिया भाईजान आप कुप्तिया जो आप थी आप उनसे एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम क्या था? तो मारिया किप्तिया इब्राहिम में इब्राहिम मारिया हाँ, किप्तिया का घर नहीं था? जब उसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल के आंखों से आंसू बह रहा था। ये पढ़ा है कि नहीं हदीस में? हाँ, तो अपने बेटे नहीं के लिए वो आंसू बात बह रहा वो था तो ना। अपने बेटे के गम में तो किसी का मारिया भी आंसू किप्तिया बहेगा, को वो औलाद बात दिया। सवाल ही नहीं है। तो उन्हें हेलो जो लौंडी इनाम में मिली थी और जैद को भी कह दिया था कि वो मेरे बेटे की तरह है, तो कैसी बात कर हेलो रहा है? हेलो हेलो अरे वो भाई, बात ही मारिया नहीं पूछ रहा किप्तिया हूँ, को मैं ये आजाद पूछ किया रहा था। हूँ कि आपको कोई लड़की तोहफे के तौर पर दे तो उस हाँ, अमल को आप कैसे समझते हैं? ओए होए अरे होए होए, क्या अरे सवाल, कैसा नहीं समझा? जबरदस्त। अबे बादशाह था, अबे जिसने दिया था वो बादशाह था, ईसाइयों का अरे बहुत बड़ा बादशाह था। उसने जब जिसने इस्लाम कबूल सुनिए किया हेलो तो रसूलुल्लाह को गिफ्ट में दे दिया। उबैद भाईजान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो, उबैद भाईजान अरे रुकता क्यों नहीं है लौंडी जो उबैद? होती है, मैं उबैद तुम्हें रुकता बता क्यों चुका हूँ नहीं है? ना कि वो इल्म इस खैर तरह हासिल से करने के लिए होती है। थोड़ा चुप क्यों नहीं होता भाई तू? तू उबैद जो भाईजान बोल रहा है, वो एक इंसान को तू वो जिसने उसका दिया ईमान गिफ्ट के बचाने तौर की पे, कोशिश कर रहा है, तो उसका पहले एतराज तो सुन ले। थोड़ा रुका भी तो कर, कंटिन्यूअस मैं बोलते जा रहा है, सुन पहले ही सुन रहा ले। हूँ, तुम बोल तो ले, मैं सुन रहा हूँ ना, बोलना। तू रुक, हेलो हाँ हेलो बोलो। उबैद भाईजान वो जिसने दिया था वो उसका अमल है, वो गुनाह में हाँ, मुलविस होगा। आप नबी हैं, हाँ, पूरे दुनिया के लिए खैर के तौर पर भेजे गए हैं। अरे आप हाँ, किसी लड़की को तोहफे के तौर पर कैसे कबूल कर सकते हैं? अरे हाय तो हाय उससे हाय हाय। सोबत करना हलाल है ना भाई, हलाल है वो। क्यों वो हलाल हलाल, वो जायज काम है। क्यों हलाल है? उसके अंदर एक आदमी सोबत वही करेगा, तो ना मेरा कि वो सवाल है 10 कि भीख ये मांग के हलाल 100 से क्यों है? सोबत करेगी। अच्छा जो एक मिनट रुक जो जा, 100 सैफू से एक मिनट सोबत रुक जाओ। करती हैं, वो जो भीख मांग। उबैद और सैफू रुक जाओ, ठीक है। अच्छा उबैद, मुझे एक बात बताओ, अभी तुमको कोई भी कमाटीपुरा से एक लड़की उठा के गिफ्ट करे तो तुम उसको कबूल कर लोगे, नहीं करोगे? सुन, कबूल क्यों नहीं कर लूंगा? जब वो एक हाय की हाय तरफ हाय आ हाय जाएगी हाय तो वो हाय खैर हाय की हाय तरफ आएगी, खैर की तरफ आएगी। और वो हाय हाय जब वो हाय। सोबत को छोड़ेगी, इस्लाह को छोड़ेगी, जब वो 10 के पास रुक जा, जाएगी, जिस तरह से तुम लोग का ईमान है कि रुक जा, तुम लोग रुक जा, थोड़ा रुक जा। क्या कहा उबैद ने? कोई इसको अच्छा एडम साहब, कमाटीपुरा जो है वो मुंबई में एक अबे रेड लाइट एरिया है। मत कर बेटा। थोड़ा थोड़ा ओह, रुक मुझे नहीं पता जाना था। भाई, मैं थैंक यू फॉर कॉन्टेक्स्ट, द कॉन्टेक्स्ट। हाँ वो कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा था। थोड़ा रुक जा, तू बीच में बोलता है इस वजह से बैक स्टेज किया हूँ, रुक जा। तो एडम साहब, ये कमाटीपुरा जो है ये मुंबई में रेड लाइट एरिया है, तो मैंने, और इसको मालूम है अच्छे से, मैंने इसे सवाल किया कि कोई कमाटीपुरा से वहां से लड़की उठा के इसको गिफ्ट करे तो ये लेगा? तो ये बोलता हाँ ये खैर है। साहिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था आपने, मुझे कमाटीपुरा का नहीं पता था। नाउ दैट आई नो दैट, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन मेरा एक और सवाल है यहाँ पे। ये कह रहा था कि खैर होगी तो चलो, उसे आजाद करेंगे, खैर होगी तो उसे आजाद करेंगे, खैर होगी तो उसे आजाद करेंगे। मोहम्मद ने किस वक्त इस लड़की को आजाद किया था? हाँ ये बता दो। ए भाई, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी कितने जज्बा मारिया आजाद किप्तिया में करने का? खैर कभी अब नहीं नजर आया रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु को? अलैहि वसल्लम ने गुलामों को बेटे तक का दर्जा दे दिया था, माल में हिस्सा कर दिया था। क्या और बात बाद करता में है? उसकी मारिया की बीवी कित्तिया को के बारे में, पीसीटी कर दिया था। अबे, मारिया कित्तिया के बारे में सवाल है अबे स्पेसिफिकली, तो वो बोलो कभी आजाद किया था? मारिया किप्तिया तो उनकी मारिया कुप्तिया तो उनकी जौजा में से हो गई थी ना, जब बच्चा पैदा हो गया था तो। कब कब अबे हाँ, कब? कौन कहता है कि मारिया किप्तिया उम्मे हातुल मोमिनीन है? अच्छा लेकिन 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 एडम अरे एडम एडम उम्महातुल साहब, मोमिनीन में से ही हो उबैद गई, साहब जब एक बच्चा मिनट, पैदा हो गया तो उम्महात उबैद में से आ साहब एक गई। मिनट, उबैद साहब एक मिनट, क्योंकि जो हाँ, बुनियादी सवाल एडम साहब का है, बच्चा मैं बच्चा वो पहले हलाल का हो गया वो। अरे थोड़ा रुक ना मेरे भाई। मैं जबी हाँ मैं बोल। हाँ, एडम साहब, जो बुनियादी सवाल आपका था और ये उबैद का जो बेसिक आर्गुमेंट था, वो आपने यहाँ पे मिस कर दिया क्योंकि आगे बढ़ रहा है। इसने कहा था कि जब खैर होगी उसके अंदर तब उसको आजाद किया जाएगा। इल्म मतलब, खैर। हाँ इल्म वगैरह, मतलब उबैद ये कहना चाह रहा है कि जब तक मारिया किप्तिया को रहम में बच्चा नहीं टिक गया था, तब तक उसके अंदर रसूलुल्लाह ने कोई खैर और इल्म नहीं पाया, क्योंकि तब तक तो आजादी हुई भी नहीं है। अरे तो बच्चा वो बच्चा आजाद टिकने के बाद करने की आजादी जरूरत होगी नहीं, थी। वो आजाद नहीं हुई ना। वो आजाद नहीं होना चाहती है, वो आजाद होगी नहीं रसूलुल्लाह के साथ में, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ने मकाम और मर्तबा भी दे दिया ना, तो आजाद आजाद ही हो गए, फिर वो रसूलुल्लाह के आजाद पास ही करके शादी रहकर नहीं कर आजाद हो सकते चुकी थे? है, समझो।
हाँ آپ کے رسول रसूलुल्लाह اللہ ने इतना आजाद ये मकाम आगे मर्तबा का दे बात। दिया, अपने हेलो, गुलामों को अपना बेटे तक का बना दिया, मेरा एक अपने सवाल है। जायदाद में भी हिस्सा। अबे पहले सवाल सुन ले, हेलो, वो जो मकाम और मर्तबे की तुम बात कर रहे हो, क्या रसूलुल्लाह उस मारिया किप्तिया को आजाद करके नहीं दे सकते थे? ये सवाल है। अरे सुन, सुना। आजाद करके अभी किसी को तू बोल दे, किसी के बोल दे कि मैं यहाँ पे अभी मैं एक डेवलपमेंट कर रहा हूँ, और वहां पे मैं बोलता हूँ तो भाई तुम लोग आजाद हो, अब तुम लोग जो चाहे करो, मैं तुम लोग ड्यूटी के टाइम पे आऊंगा, तुम्हारी तो बीवी काम आजाद होएगा? है? काम तुम्हारी बीवी होएगा? आजाद है? तुम्हारी बीवी तुम लोग आजाद की है ना? ड्यूटी खत्म होगी तो मैं आऊंगा, तो काम होएगा कि मैं जाहिल? ये बता। तुम्हारी बीवी आजाद है ना? हाँ, ओके, तो मारिया किप्तिया को आजाद क्यों नहीं किया मोहम्मद ने? अरे जाहिल वो बोल रहा हूँ, उनके अंदर इल्म खैर हो जाए तो फिर वो आजाद हो जाती है हाँ, ना। तो इसका मतलब अब मारिया इल्म खैर नहीं किप्तिया है, में इल्म और खैर नहीं था। अच्छा तो मतलब क्या है? अरे मारे, अरे तुम साहिल लोग, खत्म हो हाँ, गई मारिया इसकी गेम किप्तिया यार। में इल्मो खैर नहीं था, सही है, ये अपने अरे मुंह तुम, से बोल दिया इसने। मैं तुझे क्या बता रहा हूँ, जो जो बांदियां होती हैं, जो बांदे होते हैं, बंदे और बांदे। बांदियां होती हैं, उनके अंदर इल्म खैर नहीं होता, इसलिए वो अपने उस अमाल के दर्जे पे पहुंचते हैं। हाँ, तो इसलिए मारिया कहा किप्तिया गया में कि नहीं था ना मोहम्मद उनके ने। अंदर कमाने, खाने सुनो और बीवी सुनो रखने की भी ताकत नहीं होती है बे। सुनो 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 सुनो, मोहम्मद ने मारिया किप्तिया के साथ डिंगी डिंगी फरमाया, और फिर फाइनली उसके अंदर से एक बच्चा हुआ, और फिर भी मोहम्मद ने उसको आजाद नहीं किया और उसको बीवी का दर्जा नहीं दिया। मारिया किप्तिया के मरने से पहले मोहम्मद मर गया, लेकिन जब तक मोहम्मद मरने के करीब नहीं पहुंचा उसने आजादी नहीं दी। जो बेसिकली मोहम्मद ने अपने किसी गुलाम में और किसी गुलामी के अंदर, फीमेल के अंदर कभी खैर नहीं पाया, वरना खैर पाता तो उसको आजाद करके उसे शादी कर लेता, क्योंकि अगर आजाद कर दिया तो अब डिंगी डिंगी नहीं कर सकता, क्योंकि ठोका ठाकी सिर्फ तब हो सकती है जब तक वो गुलाम है, और अगर उसे आजाद करेगा तो मोहम्मद को उसके साथ शादी करनी है ठोका ठाकी करने के लिए। तो लिहाजा मोहम्मद ने चूंकि उसे आजाद करके कभी उससे शादी नहीं किया, तो लिहाजा मोहम्मद ने कभी उसके अंदर खैर नहीं पाया तुम्हारी डेफिनेशन के मुताबिक। साहिल मैं गलत हूं? नहीं, बिल्कुल सही है। वो तो कहा मोहम्मद ना को कि क्या उसमें खैर नहीं थी। बेहतरीन हो गया, यानी मारिया गुप्तिया जो है उसमें खैर नहीं थी, बेहतरीन। ये ले नहीं, अच्छा, इसके देख अलावा एडम सीकर, तुम लोग का ईमान साहिल ऐसा भाई, है कि तुम लोग जो है ना, 4 के साथ 100, तुम लोग तुम्हारे वालियां 4 के साथ 100, 400 के साथ 100, चुप तुम ना लोग को भाई, फर्क जरा नहीं एक मिनट, पड़ेगा, मेरा क्योंकि तुम लोग सवाल है। के अंदर हेलो, अल्लाह हेलो। और ईमान और कोई फितरत है नहीं, क्योंकि तुम लोग एक ऐसे डगर पे हो जहां पे तुम्हारा कोई रब नहीं है। हाँ, तो तुम लोग के लिए कोई ये नहीं हराम हलाल फिक्र नहीं, तो तुम लोग के मुझे खून का भी पकड़ नहीं है कि तुम लोग हलाल के हो या हराम के हो। हाँ, और मारिया कुब्तिया जो है, उन जैसे कितने लोगों को रसूलुल्लाह ने आजाद करवाया, आजाद करने का हुक्म दिया, मगर मारिया कितने को? कुब्तिया और कितने को? मारिया कुब्तिया कितनी को? उनका बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद वो कितनों को? ऑटोमेटिक आजाद हो कितनों जाती को? हैं। कितनों को? कितनों को? बच्चा होने के बाद में, नहीं, बच्चा होने के बाद में वो बीवी बन अभी जाती है, भले ही गुलाम अभी रहती है, वो बीवी तुमने बन जाती है। अभी अगर इल्म तुमने खैर हो पहले, तो वो बीवी के साथ आजाद भी हो ओए जाती है। चुप कर बे। अभी तुमने पहले बोला था, मैंने तुमसे पूछा था एक्सप्लिसिटली कि उबैद, जब बच्चा हो गया क्या मैं उसके बाद अपनी गुलाम औरत को आगे बेच सकता हूं? तो तुमने कहा था हाँ। हाँ तो बच्चा होने के हाँ, बाद वो आजाद नहीं हुई है, क्योंकि मैं उसे सुन, बेच सकता हूँ। नहीं बात सुन ले, बात सुन ले, अगर कोई खैर नहीं हो ना, कोई खैर नहीं तो औरत को भी तलाक दिया जा सकता है, जो आजाद औरत हो उसको भी कहा गया हाँ, है कि लेकिन उसे भी अभी तलाक देना अभी बेहतर है। गुलाम की बात कर रहे हैं। अबे तो आजाद को मैं तो बेच अगर गुलाम सकता से तो क्या? छोटी बात हो गई, गुलाम को ओबेद, क्यों नहीं ओबेद, बेच सकते हैं? गुलाम को भी हटा दो, जब उनके अंदर कोई इल्म खैर है ही नहीं, तो हाँ, तुम उनके तो साथ रहोगे कैसे? इसका मतलब ये है कि आपकी वो गुलाम ही रही, आजाद नहीं हुई बच्चा होने के बावजूद। हाँ, आजाद कब हो? आजाद हो वो बच्चा होने के बाद वो आजाद हो जाती है, अक्सर यही होता है, कैसे हो गई? मगर वो अगर तलाक देना अभी चाहे तो तुमने तलाक अगर आजाद नहीं होती वो, अगर मैं उसको आगे से बेच आजाद हो सकता जाती है। हूँ तो वो आजाद कैसे हुई? अगर अगर उसके अंदर इल्म खैर अगर है, अपने बच्चे का लिहाज करना। साहिल मजीद इससे बात करनी है?
اب नहीं ये तो सर्कुलर रीजनिंग और स्टूपिड बातें हाँ कर वो रहे हैं। सेम चीज, लेकिन ये अच्छा है कि उबैद जो आके अच्छी पोल खोलता है, कल भी इस्लाम की अच्छी पोल खोला था इसने, कल नहीं सॉरी ट्यूसडे को, और आज भी इसने खोला और ये कहा कि अगर मुसलमान को कोई ला के कोई प्रोस्टिट्यूशन हाउस से उठा के कोई लड़की अगर गिफ्ट करता है तो मुसलमान उसको कबूल कर सकते हैं इस्लाम की रूह से, और फिर उसके देखिए साथ डिंगी डिंगी कर सकते हैं। और ये इस्लाम की अच्छी अच्छी टीचिंग्स है। और सैफू भाई, जो बेसिक बुनियादी आपका सवाल था गिफ्ट करने के ऊपर, तो ये बेगैरती वाला जवाब इसने दिया कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे ख्याल से यही सब वजह रही होगी आपके इस्लाम से आपका जो दिल हट गया, मेरे ख्याल से यही सब सारी वजह नहीं, है। इन इन लोगों की वजह से तो नहीं, ये लोग तो लगता नहीं है मुझे पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनका बात सुन के भी तस्कीन नहीं मिलता, दिल को सवालों का जवाब नहीं मिलता। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जो गलत है उसमें आपको तस्कीन कहाँ से मिलेगी भाई? मैं ईमानदारी से भी बोल रहा हूँ, मैं अभी भी डर रहा हूँ कि मैं यार डर गुनाह तो किससे नहीं रहे? कर क्या रहा। आपका ख्याल है कि अल्लाह जो इस दुनिया को बनाने वाला है, लेट्स अज्यूम अल्लाह है, वो इतना बेगैरत और हरामी हो सकता है? अगर हो सकता है तो फिर आप डरें, और अगर नहीं हो सकता तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है इट वाज ए फॉल्सिफाइड थिंग जो मोहम्मद ने क्रिएट की लोगों को डराने के लिए। और अगर आप कहते हैं कि वो इस किस्म का बेगैरत हो सकता है, नाइंसाफ हो सकता है, तो फिर ठीक है, फिर आपको डरना बनता है। वरना अगर आपको लगता नहीं है कि यार इतना बेगैरती कौन कौन सा खुदा कर सकता है, इस दुनिया को अभी भी बनाने मुझे वाला उम्मीद कौन है सा ऐसा कहीं खुदा है? कोई आर्गुमेंट होगा। सर वही तो बता रहा हूँ, ये अभी सिर्फ इसी हम्म, आर्ग्यूमेंट को अगर ले लेना, तो क्या इतनी बेगैरती दिखाने वाला कोई खुदा हो सकता है? थिंक अबाउट इट। नहीं हो सकता। तो वो बात खत्म होगी ना मेरी जान, फिर डरना किस बात का? हाँ, यानी डर कि के क्या बेसिकली जिंदगी गुजारना भाई। बेसिकली अल्लाह आपको रेप करना अलाउ कर रहा है। मोहम्मद देखिए, एक गुलाम है, उसके पास तो कोई ताकत ही नहीं है कि वो आपको रोक सके रेप करने से। अगर ये लिखा होता, देखिए, अगर ये लिखा होता कि आपने जो गुलाम रखा है आप उसके साथ शादी कर लो, ठीक है, और शादी करोगे तो आजाद करके ही करोगे, ठीक है। अगर ऐसे लिखा होता तो चलो फिर ठीक है, कुछ किसी हद तक बात बनती थी ना, कोई आर्ग्यूमेंट बनता था इन मुसलमानों का ये कहने के बारे में कि हाँ यार हमने शादी की है, इट्स अ मैरिज, नाउ शी इज माई वाइफ, ठीक है। तो फिर तो कोई बात भी बनती थी। आप शादी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसकी ठोक रहे हो, बजा रहे हो। और ये भी नहीं कि अगर आपने एक दफा एक गुलाम की ठोक बजा ली अब आप उसे बेच नहीं सकते, आप उसे बेच सकते हो। अच्छा ये भी नहीं कि बच्चा पैदा कर ले तो नहीं बेच सकते, बच्चा पैदा करा के भी बेच सकते हो। यानी कि जब आपने बच्चा पैदा करा के उसको बेचा तो आपने क्या किया, आपने माँ को उसके बच्चे से दूर कर दिया, ठीक है। आपने अपनी एक माँ को उसके बच्चे से दूर कर दिया, क्योंकि अब वो माँ किसी दूसरे के पास चली गई है, बच्चा उसका आपके पास रह गया है, और वो वहां पे किसी और के जरिए ठुक रही है। तो ऐसी नाइंसाफी करने वाला खुदा, आप उसे खुदा समझेंगे तो फिर डरना आपका बनता है, और अगर उसे खुदा नहीं समझेंगे तो फिर आपका डरना नहीं बनता। मुझे तो यही इनह्यूमन लगता है कि कोई आदमी महज काम करने के लिए अपने घर में किसी को बर्तन चौका करने के लिए रखे गुलाम बना के, सेक्स तो बहुत दूर की बात है। चले यार, काम करने के लिए तो आप पैसे दे रहे हैं ना उसको, इट्स नॉट अ गुलाम। नहीं वरना तो फिर पैसे, हम नौकरी जो कर रहे हैं हाँ, उस पे भी हम काम करने, वो भी लोग नहीं कहते हैं नहीं नौकरी नहीं भी वो नहीं गुलामी वो है, नहीं हमें पैसा नहीं मिल रहा है भाई। नहीं, वो हमारे यहाँ इंडिया में होता था कि आप उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते, लेकिन बंधुआ मजदूर के तौर पर जिंदगी भर आपसे जुड़ा हुआ रहता था। ज- तो चले, वो लेकिन फिर बात है, भी यार वो उसमें फिर इनह्यूमन। भी है कि बंधुआ के भी आपने कुछ पैसे दिए हुए हैं, ऐसे ही तो नहीं ना बंधुआ बनता था। आप उसको पैसे दे रहे नहीं, हैं, अगर आप उसको आप अगर किसी लड़की को या लड़का को जीत के भी लाते हैं, मान लीजिए जीत के लड़का कैसे ही ला सकते गुलाम हैं? अगर बना लेते हैं, हाँ, नहीं वो लड़ाई वाला ही बात बोलते हैं, जब भी लौंडी वाली बात होती है उसको सही साबित करने के लिए वो आर्गुमेंट देते हैं। मैंने स्टार साहब का भी आर्गुमेंट सुना है, वो बोलते हैं कि सबको लौंडी नहीं बोलते हैं, जो नहीं, वो फिर जंग में, मोहम्मद ने हाँ फिर जंग, मोहम्मद ने जिना किया, क्योंकि मोहम्मद ने लड़ाई में नहीं जीता था मारिया किप्तिया को, फिर हाँ मोहम्मद ने वो जिना किया। मारिया किप्तिया तो गिफ्ट में मिला था ना। हाँ, फिर हाँ मोहम्मद हाँ जिनाकार है, हाँ। ठीक है ना। तो हाँ, अगर आप एक एक मैन को भी ये अगर आप मतलब गुलाम बनाते हैं तो वो भी इनह्यूमन है। सेक्स तो बहुत दूर की, बच्चा पैदा करना बहुत दूर की बात है। हाँ, लेकिन अगर इस तरह का भी कोई इजाजत देता है। यहाँ पे बेसिक चीज क्या होती है, देखें, यहाँ पे बेसिक चीज उनकी आती है भाई, वो उस जमाने में जेलें नहीं थी, क्योंकि जेलें नहीं थी लिहाजा उनको किसी ह्यूमन के अगेंस्ट रख दिया, क्योंकि वरना जेल में डाल देते और जेल में उनसे काम काज कराते, ठीक है। तो इनको ह्यूमन को दे दिया, तो चलो जी, इस वजह से क्योंकि जेल नहीं था तो जेल में भी तो काम करना है ना उन्होंने, तो वो ह्यूमन के पास काम करेगा।
چلو یہاں تک پھر بھی کسی حد تک صحیح ہے, کیونکہ بھائی آپ کو اس زمانے کو بھی دیکھنا ہے, یو آر گوئنگ بیک 1400 ایئرس, ٹھیک ہے, تو جیلیں نہیں ہے تو لہٰذا آپ نے کچھ بنا لیا ایک. مگر یہ دوسری والی گیم ہے نا, سیکس کرنا, بچہ لینا اور پھر آگے دے دینا اور آگے بیچ دینا, اور اگر اس کا خاوند ہے تو جیسے ہی وہ آپ کی غلام بنی, اس کا خاوند کا رشتہ اس کا ٹوٹ طلاق گیا, ہو گیا, طلاق ہو گیا بائی طلاق ہو جائے ڈیفالٹ, گا. ٹھیک ہے. تو یعنی آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ یار جس بیوی کا, جس لڑکی کا خاوند ہے اس کو تو کم از کم خاوند کے ساتھ رہنے دو. نہیں, وہ بھی خاوند کا رشتہ ختم, اب وہ آپ کی ملک ہے, اب آپ اسے ٹھوکیں گے, اور اب اس کا خاوند جو ہے وہ ساتھ والے گھر میں ہے, لٹ سے غلام, ٹھیک ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی ساتھ والے گھر میں ٹھوک رہی ہے. لائک کم آن مین, کتنا انہیومین کام ہے یہ, بہت کتنا ہے. انہیومین کام ہے, ٹھیک ہے. جب تک ان کا آرگومنٹ یہ رہتا ہے نا کہ اس زمانے میں جیل نہیں تھے, چلو ہم مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جیل نہیں تھے لہذا لوگوں کو دے لیکن دیا. اس کا اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے نا کہ ابھی وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ قانون, اور آج کے زمانہ میں ایک انسان جو قانون بنا رہا ہے وہ اس سے بہتر بنا رہا ہے, اللہ سے بہتر قانون انسان بنا لے رہا ہے. سر وہ جیل بن گئے نا, تو آپ کا بولا آرگیومنٹ وہ جیل بن گئے میں جیل میں چلے جائیں گے نا, جس طرح یعنی کہ وہ پرزنر آف وارز جیل میں جاتے ہیں, رائٹ. لیکن وہاں تک میں پھر بھی ہضم کرنے کو تیار ہوں, آئی ایم ایبل ٹو ڈائجسٹ اٹ, ٹھیک ہے, اس سے آگے نہیں نا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ آپ کے آرگومنٹ مسئلے توڑ سکتے ہیں اسی طریقے سے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. میں آپ کو مسلم کا آرگومنٹ دے رہا ہوں, آئی ایم ناٹ گیونگ یو این آرگومنٹ فرام مائی اون سائڈ. میں آپ کو وہ آرگومنٹ دے رہا ہوں جو مسلمان اسکالرز دیتے ہیں, اور آپ نے بھی سنے ہوئے ہیں یہ آرگومنٹس. لیکن یہ آرگومنٹ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے جب آپ اس کی لڑکی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرماتے ہیں اور اس کی شادی توڑ دیتے ہیں اس کے کرنٹ ہسبینڈ کے ساتھ, اور پھر اس کے ساتھ بچہ پیدا کر کے اسے آگے بیچ لیتے ہیں. یہاں پہ یہ والا آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ چلیے سیفو بھائی, بہت اچھا لگا آپ جڑے, اور آپ نے بھی اچھے طریقے سے عبید بھائی سے سوال کیے, اور بالکل ڈر ور چھوڑ دیجئے, بالکل کھل کے اپنی زندگی جیے آپ, کیونکہ جہاں ڈر ہوگا وہاں سٹریس آئے گا, جہاں سٹریس آئے گا وہاں بیماری آئے گی, اور بیماری کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے. ایک زندگی آپ کے پاس ہے, اس کو اچھے سے کھل کے جیے, خود بھی اپنے لیے بھی اچھا سوچے, دوسرے کے لیے بھی اچھا سوچے. بہت بہت شکریہ. باقی کالر سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں سیفو بھائی. تھینک یو. جی یار عبید اگر کبھی جو ہے نا سانس لے کے بات کرے نا تو بڑا مزہ آئے اس سے بات کر کے, لیکن یہ بندہ جو ہے نا سانس لے کے بات نہیں کرتا. باپ رے باپ, مجھے یہ نہیں معلوم کہ گھر پہ بھی ایسی ہی بات کرتا ہے کیا وہ بھابھی بی کے ساتھ. کبھی پیار محبت سے کسی سے بات کیا یا نہیں کیا, کیا معلوم. یہ بیوی کو بھی کہتا ہوگا, ابے اوئے تیرے میں خیر نہیں ہے, بستر پہ آ بے, ابے بستر پہ آ بے, خیر نہیں ہے تیرے میں, خیر ڈالتا ہوں میں, خیر ڈال رہا ہوں تیرے میں خیر, آج صبح تک تجھے خیر دکھاؤں گا میں, جس طرح محمد نے خیر دکھائی اپنی غلاموں کو, میں تجھے خیر دکھاؤں گا, نہیں تیرے سے خیر نکالوں گا آج. بھائی تو ایڈم صاحب, تم کو ایسا چلانے سے پہلے ڈسکلیمر دے دینا چاہیے کہ جو لوگ ہیڈ فون لگا کے بیٹھے وہ تھوڑا والیوم کم کر لے.